Ladies English कितना सब चला गया रिक्वेस्ट भाई ध्यान देखिए आने तो दीजिए, आने दीजिए। आने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर दिखते रहे। ऑटोमेटिक शो कर देगा। We are sorry for the delay. We are just trying to connect again because there was some technical issue with us. I hope we'll continue the session again. So just wait with us for a minute. Just wait for 2-3 minutes. We'll be connecting to Honey in just few minutes. तुम अपना लाइव स्टार्ट कर लिए और हमने अपना लाइव स्टार्ट कर लिया। उसको लाइव ऑफ करने बोलो, उसको हमारा अकाउंट में ज्वाइन करने बोलो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका लाइव ऑफ कर। We are just going through some technical issue. I hope please keep patience. We'll be back in a minute. आप अपना लाइव बंद करो, जब वहाँ से SBA से जब लाइव का रिक्वेस्ट जाएगा ना उसको ज्वाइन ना या फिर आप SBA में टच करने बोलो, SBA में टच करने बोलो। नहीं, आप हमारा जो SBA का है उसमें आप अपना रिक्वेस्ट भेजो कि यू वांट टू ज्वाइन, उसमें ऐड होने बोलो, ऐड होने बोलो। Thank you for your cooperation. We'll just go live in a minute with Honey. आप अपना पहले बंद करो ना, फिर SBA का पेज आप जब खोलोगे, लाइव पेज खोलोगे तो वहाँ पे नीचे में आप देखोगे कि ना रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लाइव ऑटोमेटिकली हम लोग भेज देंगे, ठीक है। ओके, विल एक्सेप्ट। ओके, रुचि मंडल, यू आर आस्किंग अभी क्या होने वाला है? वी हैव अ वेरी बिग बास्केटबॉल प्लेयर कमिंग to join us live in a few minutes, and then we'll have a question answer session with her, and it will be a very interesting journey. So please keep patience. Hey, sorry, Honey, for the delay and every technical thing. Can you see my video? Are you visible right now? Yeah. Okay, let's get ahead. Welcome everyone to the second live session of Siliguri Basketball Association. Today we have a very special player with us. Honey, your video again went off. Now It's good? fine? Yeah, it's good. We have a very special player with us. At her age, where kids are finding their dreams, working for their goal, she has already created a very big milestone in Indian basketball history. Introducing you at 6.3 feet from Kartikpula, Punjab, jersey number 23, Harsimran Kaur Dhami. Hello, honey. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Before going ahead in the session, I would like to call upon our Secretary Sir of Siliguri Basketball Association to address the viewers.
sir. Hi, sir. Hello. How are you? Fine. I'm good. How are you? Fine. You have given a time to us. बहुत अच्छा है आपने जो हमको टाइम दिया. I am very happy that in this session we at least आपका जो वर्कआउट है आप उससे आप जो बातचीत करेंगे तो वी कैन हमारा जो बॉलर्स है शायद उससे भी इंस्पायर होंगे, स्पेशली गर्ल्स. हमारे यहाँ पर गर्ल्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, तो आपके आने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा. So I will hope that you will support us for like that only. Yeah, So, definitely. very welcome to your show. My name is Samiran Roy, and you're always welcome. Whenever you come to Siliguri or Darjeeling, you can. I have given you my association number. You can Thank you anytime so contact us. We will always give you opportunity to meet our bowlers also. So you will get some different place here. Okay, then I am giving to all to the handles to our co-host Swaranjali. She will address you again, and again you will go forward. Thank you very much. Thank you so much. Welcome back to the live session again. Before moving forward to the question answer directly, I would like to show some of her achievements. Apart from playing in the 5-on-5 Indian national team, she has also represented in the 3-on-3 Asian Championship that was held in Jakarta last August. She was also one of the 4 Indian girls to be invited to the first Generation Next program at NCAA Women's Final Four in Tampa last April. This was also followed by her participation in the Basketball Without Borders Asia in Tokyo last summer. One of the most that makes her different from every other athlete is she achieved the distinction of becoming the first Asian woman selected for the training in NBA Global Academy in Canberra after bagging the MVP award at Women's Academy NBA in Mumbai. Looking forward in the future, we expect her to be the first Indian woman to be playing in WNBA League. And if the viewers have any questions, you all can DM us your questions later on to ask her. And now we'll move to the next session, which will be hosted by Sangeeta ma'am. And let's go. Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Hello and welcome to this very special Insta Live with Indian aspiring teenager Harsimran Kaur alias Honey. Today we are privileged to have a great basketball player amongst us. What we have in common is that we all have fallen in love with basketball. So, Honey, now we're going to ask some questions to you so that our viewers get to know you much better. Tell us, you always had a dream of playing in WNBA. How did this passion develop? In WNBA में खेलने का आपका हमेशा से ही एक ड्रीम रहा है. आपके अंदर ये पैशन कैसे डेवलप हुआ? So like I played basketball 12 years old. Can you hear me properly? Yes, Honey, we can hear you. So like when I started in NBA Academy, then I get to know about WNBA and NBA. And then I realized that WNBA very like final it's too hard to reach there. So that's why I just built my dream to go there and play.
हनी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, आप हेडफोन से एक बार लगा के ट्राई कीजिए। 1 minute. ओके। You guys can see me? Yes, we can see you. Your video is not there, honey. It's now good? You're there. Fine, perfect. Yeah, so you were telling us about your dream of going to a WNBA. Can you hear me? Yeah. Okay. So, honey, the second question that I want to ask you is that your father, Mr. Sukhdev Singh, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उनकी आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो क्या आप शेयर कर सकते हो? Yeah. Actually, मैंने अपने पापा को देख के गेम स्टार्ट की थी. So now you can hear me? Yes. Yeah. We can hear your sweet voice. Because some people are saying that my sound is not clear, so. Now it is clear. Okay. So actually my father used to play basketball और वो मुझे साथ में लेके जाते थे ग्राउंड में और साथ में मैं उनके देखती थी बास्केटबॉल जब बाकी लड़के खेलते थे. So like वहाँ देख देख के इंटरेस्ट बन गया and like then I decided at the age of 12 that I wanted to play basketball. So I like मैंने उसको अपने पैशन के लिए चूज कर लिया. So that was the story when I started basketball. And when I started basketball, मेरे टाइम में लड़कियां नहीं खेलती थी. Like I was the only girl. तो वहाँ सब लड़के वगैरह खेलते थे. तो I was the only girl with my dad and with my dad's co-player. So I used to play with them, compete them. And you know, in starting it was hard, like boys को compete करना and all. But then पापा को देखते देखते and then पापा ने game छोड़ दी because of some reasons. And then he started coaching me. And from that time, I like confirmed that I want to play basketball and want to achieve something. Wow, wonderful. Yeah. Viewers, I want to share with you that Harsimran, she scored first division in a class 10 CBSE board exam. Congratulations, honey. So tell us, at such a young age, आपने ये बैलेंस कैसे किया? Academics and sports दोनों साथ साथ में बैलेंस कैसे किया? So like when I started like the basketball or tournaments, so I started from mainly from school tournaments. And उस वक्त इतना जब मैं 7 में थी तो इतना स्टडीज का नहीं होता था. But जब क्लासेस बड़ी होती गई and when I started getting my like big tournaments and all, तो when I started playing nationals from Punjab and all, so उस टाइम थोड़ा टाइम कम हो गया पढ़ाई को देने के लिए. And तो मैं भी करती थी अपने साथ जो मुझे सब्जेक्ट मुश्किल लगता था, so I used to take that from like in my tournaments and all, फिर मैं वहां पढ़ती थी. So I know बैलेंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि टुडे जब जितने भी बच्चे हैं सब यही पूछते हैं कि आप एकेडमिक्स और गेम कैसे बैलेंस करते हैं. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. बट या अगर हम पूरे दिन में सिर्फ 1 और 1-2 घंटे अगर हम पढ़ाई को दे देंगे तो आई थिंक इट्स इनफ. एब्सोल्युटली. दैट्स अ वंडरफुल मैसेज. या सो 1-2 घंटा अच्छा ठीक है अगर हमने गेम खेलना है और वी वांट टू हैंग आउट विद अवर फ्रेंड्स एंड ऑल, और अगर हमने बास्केटबॉल ही खेलना है, वी वांट टू प्ले ऑल डे, तो लाइक फिर भी दिन में 1-2 घंटे अगर हम निकाल लें फॉर जस्ट स्टडी, सो इट्स आई थिंक इनफ. या एब्सोल्युटली.
तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई टाइम टेबल्स, माई शेड्यूल्स, कि मैं कैसे बैलेंस करूं अपनी स्टडीज को एंड ऑल. शुरू में हाँ, इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, बिकॉज मुश्किल होता है, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल एंड ऑल, और दैट टाइम आई स्टार्टेड न्यू. सो and I was very curious to know all the things at one time only. So, Okay. but then when I came to know that study is, I think, more important than what I'm doing, so I made my schedule and I started like जो मेरे ज़्यादा important है, and then I started giving time to academics and all. So that was, it's like, you know, So what was your organized. normal routine? Oh, my Normal routine क्या था? It's now या or you किस are तरह asking से आप अपने आप को फिट रखते थे? when I started basketball. हाँ So हाँ. शुरू से ही मैं I was very thin, like मेरे को कोई फिट रहने का वो नहीं था. So Okay. स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि उस टाइम मेरा एक पीक एज था, लाइक दैट टाइम आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, नेशनल्स, अंडर 14 स्कूल गेम्स एंड ऑल. So उस टाइम I used to do 2 time practice, like 2 hours in a day, or like 2 hour in morning and 2 hour in evening. And then I have to go school after morning practice, like सुबह 5 बजे उठना, 5:30 ग्राउंड, and then 7 बजे वापस, then 7:30 तक नहा वगैरह सब कुछ स्कूल, and then I think 2 या 3 बजे स्कूल से वापस, वहां का होमवर्क, and then ट्यूशंस, and then फिर 5:30 फिर शाम की प्रैक्टिस, and then फिर मैं 8 और 8:30 वापस आती थी, बिकॉज मेरे को Very शाम hectic. का, या शुरू में ऐसा होता था, तो शाम का मुझे जो ट्रेनिंग सेशन था वो ज्यादा अच्छा लगता था एज कम्पेयर टू मॉर्निंग. Morning session, yes. तो उसके बाद एंड में जितना टाइम रहता था तो स्टडीज में और समथिंग सोशल मीडिया एंड ऑल. सो शुरू में ऐसा था, पर अब अभी अभी तो फिर अभी तो कोविड चल रहा है, ये अपना लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस समय आप अपने आप को कैसे फिट रख रहे हो? सो इस टाइम जब ये सब शुरू हुआ, इट्स लाइक पेंडेमिक एंड ऑल, और जब हमें लॉकडाउन वगैरह करती है सिर्फ घर में, लाइक तो बट पहले शुरू में आई यूज्ड टू डू वर्कआउट्स 2 times a day in the home only. तो like without basketball it was very hard, like we all are missing basketball, right, and court and all. तो उस टाइम थोड़ा Yes. मुश्किल था, फॉर आई थिंक 1 or 2 month हमें घर पे ही रहना था, बाहर सिर्फ ग्रोसरीज वगैरह के लिए जाना होता था. तो एंड इसीलिए तो फिर घर पे वर्कआउट्स एंड ऑल, स्टडीज, ऑनलाइन क्लासेस, तो यही सब था. अब हमारा वी आर अलाउड टू गो आउटसाइड एंड I can practice with my men's team in the like in Okay. RCF. So now it's good. Like पहले बहुत boring था. आई नो. आपकी जो शूटिंग स्टाइल है वो बहुत ही निराली, यूनिक है. तो आपको ये शूटिंग स्टाइल आपने डेवलप कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे हमारे यंग बॉलर्स हैं जो आपकी शूटिंग स्टाइल से इंस्पायर हो रखे हैं. तो Yeah. आप ये कैसे आपने ये डेवलप किया, इसे मास्टरी कैसे की? So actually my shooting action I like ये मैंने अपने पापा से लिया है. So Oh, wow. I'm I'm trying to make it more good and more perfect than before. But yeah, Okay. I took it from my dad. So हम्म. उनको देख के, like I told you कि उनको देख, actually हम देख के ज्यादा सीखते हैं I think. So उनको देख के like Absolutely. बाकी लड़के भी, so I always wanted to copy them कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. So इसलिए मैंने ये एक्शन मेरे पापा का है. ओके, गुड. आपने ये जो अपना इंडियन विमेन्स नेशनल टीम है, यू आर अ वेरी की प्लेयर इन दैट, यू आर लाइक एन ऑलराउंडर. तो आप वहां पहुंचे कैसे? आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, यू आर जस्ट 17 years old, you are just a teenager, and to reach over there at such a young age and at this speed, can you just share कि आप इतनी जल्दी पहुंचे कहाँ वहां पे, जहाँ कितने लोग कितनी मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाते, आप कैसे पहुंचे वहां पर? So like शुरू से ही मैं हमेशा अपनी एज से बड़ी खेली हूँ. Like अगर अंडर 14 हो तो आई एम प्लेइंग अंडर 16, if I am 16 I am playing under 18 or seniors. So yeah, it Okay. was starting, it was hard to compete with our senior players and the players who has experience and all. तो शुरू में काफी मुश्किल था, बट जब मैंने स्टार्ट किया अपने अपने से बड़े लोगों के साथ compete करना, so I
केम टू नो कि लाइक आई रियलाइज्ड कि और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे सीखनी है, और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे उनको compete करने के लिए, उनको बीट करने के लिए और क्या क्या करना है. सो उनको देख के लाइक मेरे को शुरू में इतना चांस मिलता था खेलने का, जब भी मैं सीनियर्स की टीम में होती थी या फिर अंडर 18 की टीम में हूँ या कुछ भी. तो कैंप्स में जो भी हमारे इंडिया कैंप वगैरह लगते थे, तो आई यूज टू सी देम कि वो क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर व्हाट आई एम नॉट एबल टू डू. सो उनको देख के जो जो चीजें मेरे में नहीं थी, जब मैं घर आती थी वापस, आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड विद माय फादर. एंड जो जो नई चीजें सीखती थी उसको और अच्छे से करना है, सो दैट जब मैं वापस जाऊं वहां पर, सो आई कैन compete देम. सो आई थिंक देखकर जो जो उनके पास था, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग एट माय होम कोर्ट. सो इट वाज द मेन थिंग कि जो मैं अभी उनके बराबर compete कर रही हूँ. एंड या एंड स्टिल इट्स अ लॉट, लाइक मतलब फिर भी उनको I अभी know. भी, या still I'm trying to This be is the that guy. secret. So, honey, your secret is this. You see others pick up the best thing, come back Yeah, home, and then again you practice that. yeah, Very good. Okay, you had gone to the 6th annual camp of Basketball Without Borders during the NBA All-Star Weekend in Chicago. तो क्या आप उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर कर सकते हो? yeah. So Chicago was the All-Star game, और मेन मेरा वही था, लाइक वहां पर सबसे अच्छी चीज यही थी कि हमें चांस मिल रहा है ऑल-स्टार देखने के लिए. और जब हम हमेशा चाहते हैं लेब्रॉन जेम्स वगैरह इन सब बड़े बड़े प्लेयर्स को, लाइक दे आर लाइक एनबीए स्टार्स, राइट? तो उनको देखने के हम्म. लिए, एंड लाइक हम मुझे चांस मिला उनको लाइव देखने के लिए, लाइक कैसे खेल रहे हैं एंड ऑल, एंड हाउ दे आर ऑफ द कोर्ट एंड हाउ दे आर ऑन द कोर्ट. सो इट वाज वेरी गुड. एंड हमें चांस मिला कि हम एनबीए और डब्ल्यूएनबी, बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं, दे प्लेयर्ड एंड नाउ दे आर फॉर्मर डब्ल्यूएनबी एंड एनबीए प्लेयर्स, उनके साथ चांस मिला ट्रेनिंग करने के लिए. सो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला, देयर एक्सपीरियंसेस एंड जो जो चैलेंजेस, लाइक हाउ दे ओवरकम देयर ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस. सो उनको सुन के, उनका देख के, सो या आई गॉट अ रियली लॉट ऑफ थिंग्स. आप ग्लोबल एनबीए एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में भी गई थी, तो वहां या जब आप गए, वहां का जो खेलने का स्टाइल है, ट्रेनिंग करने का स्टाइल है, वो और हमारे यहाँ इंडिया में जो स्टाइल है ट्रेनिंग का और खेलने का स्टाइल, दोनों में डिफरेंस क्या था? क्या देखा आपने कि जो हमारे इंडिया में नहीं है? क्या या था, डिफरेंसेस क्या थी? So main thing in India, we always have organized plays, और हमें उन पे फॉलो करना होता है जो भी, लाइक मेनली हम इंडिया में वी यूज टू मेक ऑर्गेनाइज्ड प्लेज, लाइक कि हमें 5 on 5 में कैसे बीट करना है एंड ऑल. बट इन ऑस्ट्रेलिया आई यूज टू हैव 1 on 1 मोर देन 5 on 5. ओके. सो हाँ, वहां मैंने पर वन देखा ऑन है. वन ज्यादा है. या ओके. तो वहां पर 1 on 1 मैंने देखा है. और हाँ, बोलो. आप जो कोई बात. ओके. मैं देख रही थी कि इंडियन टीम जो है वो 3 on 3 में ज्यादा अच्छा खेलती है 5 on 5 से ज्यादा. तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? Actually, at now, everyone enjoy the 1 on 1 thing, like because हम्म. क्योंकि जब हम 1 on 1 होता है, so we always think कि we want to beat only one person. So उससे हमारे में frustration ज्यादा होता है. And when we see 5 on 5 in front of us, so we think कि यार इसको पास देके and then कैसे निकलना है and how to do other things and all off the ball. So but in 3 on 3 हम सबके पास अपना अपना मैन होता है मोस्टली एट द मोस्ट पॉइंट. सो वी यूज्ड टू थिंक कि वी जस्ट हैव टू बीट द वन पर्सन. सो उससे आई थिंक इन 5 on 5 फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, एंड देन वी एबल टू प्ले इन 3 on 3. या तो जब आप कोर्ट एंटर करते हो तो आप नर्वस फील करते हो? या समटाइम्स, क्योंकि जब कोई ऐसी फिर टीम क्या होती है करते हो उस एंजाइटी को कवर करने के लिए? आप करते क्या हो? हाउ डू यू ओवरकम दैट एंजाइटी? कोर्ट का इट जस्ट यू नो द लाइक मतलब खुद का ही सोच के कि लाइक वी हैव टू डू दैट एंड वी कैन डू दैट. इट जस्ट 2-3 लाइन्स मैं ज्यादातर बोलती हूँ अपने साथ, अपने आप को या अपने मन में. सो हाँ, लेकिन नर्वस होती हूँ. समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे शायद हम नहीं खेल पाते हैं, बट स्टिल
ये 2-3 लाइंस जो हैं मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ टू लाइक बिफोर एंटरिंग इन द कोर्ट। सो ये यूजुअली यही करती हूँ और ये काम भी कोर्ट में करता और भी है। चीजें कोर्ट में एक चीज और होती है कि हम जीतते भी है हारते भी है, राइट। या लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेफरी का डिसीजन भी हमारे अगेंस्ट में होता है। तो या उस टाइम में आप उस चीज को क्या लेते हो कि नहीं यार मैंने तो सही खेला है लेकिन रेफरी ने मेरे अगेंस्ट में विसल ब्लो की है, तो उस समय आपका मेंटल स्टेट कैसा होता है? एक्चुअली मेरा यूजुअली ये है कि मैं कोर्ट में थोड़ा एग्रेसिव होती हूँ। बट हाँ, हम्म समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फाउल हमने नहीं किए होते हैं एंड स्टिल भी हमें मिल जाते हैं वो, रेफरी दे देता है। सो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मे बी रेफरी की गलती होगी या कुछ होगा, सो मे बी उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया होगा, बट स्टिल समटाइम्स लाइक ऐसा फील होता है कि क्यों हो गया। लाइक और कई बार मेरे हम्म साथ ऐसा हुआ है कि मैं गलत फाउल के कारण वी लॉस लॉट ऑफ मैचेस विद 1 पॉइंट और आई थिंक दैट फ्री थ्रो। तो या उस टाइम हम्म बहुत ऐसा है कि मतलब रेफरी को बस पूछो मत, लाइक मतलब ऑलवेज वी वांट एंड आर्ग्यू देम। हम सब में है हम्म कि हमें एकदम से उन्होंने फाउल गलत दे दिया, वी ऑलवेज वांटेड टू आर्ग्यू विद देम कि क्यों गलत फाउल दे दिया। बट आई थिंक ये सी चीजें हमें मतलब अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज गलती उनसे भी हो सकती है, गलती हमसे भी होती है। तो राइट। ये चीजें हाँ। जब से मैं अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया से मुझे लाइक अपॉर्चुनिटीज मिली, तो मैंने वहां से ये चीज सीखी है, लाइक हाउ टू बी इन पेशेंस ऑन द कोर्ट विद रेफरीज, विद अवर को प्लेयर्स, विद अवर कोचेज एंड लाइक गलत डिसीजन में भी समटाइम्स या फिर हम गलत डिसीजन बनाते हैं या फिर समटाइम्स कोचेज कुछ ऐसा हो जाता है। सो इट हैपेंस, मिस्टेक्स आर हैपेंस। तो बस लाइक एक पेशेंस होनी चाहिए, लाइक पेशेंस लेवल होना चाहिए, सो दैट जो गलती हुई है वी कैन मेक इट राइट। Yeah, absolutely. That's a very nice thing. That is what we call a sportsman spirit, right? या और जब हम इम्पोर्टेंट गेम लूज कर जाते हैं उसके बाद में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं उस समय, क्योंकि हम बहुत निराश होते हैं कि वन बास्केट से हमने ये इम्पोर्टेंट गेम लूज कर दिया, उसके कारण हम सेमीज में नहीं जा पाए या फाइनल्स में नहीं जा पाए। तो उस समय कैसे अपने आप को फिर रिबाउंड करती हो कि मैंने मैच लूज कर दिया एक पॉइंट के कारण और इतना इम्पोर्टेंट मैच था, तो हाउ डू यू कम बैक टू फॉर्म? वो मेंटल स्टेट कैसे वापस लेके आती हो, रिबाउंड कैसे होती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबकी प्लेयर्स की लाइफ में होता है, आई थिंक सबकी, यस। एवरीवन लाइक सभी के, हाँ। राइट। इम्पोर्टेंट गेम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम्स वी लॉस, और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि why we did that mistakes and all, but like I told you, like it happens, mistakes are happens, but the thing is कि हर बारी जीतना, अ, हर बारी जीतने से हम हमारी जो गलतियां हैं वो नहीं देख पाते, वी कांट सी देम। तो जब हम हारते हैं एंड व्हाट मेड अस टू लूज दैट मैच, और क्या गलती की हमने, क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए था, तो आई थिंक मैच लूज करने से हम वो चीजें सीखते हैं। क्योंकि इसलिए क्या होता है जब हम जीत जाते हैं, वी वर लाइक यार जीत गए, अच्छा हुआ, एंड लाइक हाँ होता है कि वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू विन और यहाँ तक पहुंचने के लिए। बट जब हम हारते हैं वो सब चीज, हाँ मैं मानती हूँ, डाउन हो जाती है एंड हमें हमारा नहीं मन होता है। मेरा ये होता है कि जब हम एक इम्पोर्टेंट मैच हार गए हैं, समटाइम्स आई डोंट वांट टू प्ले मोर, होता है ऐसा। या। तो बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि क्या चीजें गलती थी, क्या चीजें गलत हो गई, और व्हाट वी डिड रॉन्ग एंड ऑल, तो ये सब चीजें मैं देखती हूँ एंड देन आई गो बैक टू टीम एंड देन आई स्टार्ट टेकिंग माई लाइक एज अ लीडर, आई स्टार्ट टेकिंग लाइक आई स्टार्टेड लीडिंग माई टीम एंड ऑल। एंड मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ ये सब हुआ है, एंड लाइक मेरा मेन है कि मैं डिस्कस करती हूँ उनके साथ कि व्हाट दे थिंक अबाउट अदर प्लेयर्स। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो बेंचमेट्स हैं, जो सब हमारे साथ बैठते हैं, जो जिनको इतना खेलने का टाइम नहीं मिलता, आई थिंक उनको ज्यादा पता होता है जैसे हम खेल रहे हैं अंदर, दे नो मोर देन अस बिकॉज दे आर सीइंग ऑल द मैच व्हाइल वी आर प्लेइंग। सो मैं सबसे पहले जाके उनसे पूछती हूँ कि क्या गलती हो रही थी, हम बार बार क्या चीज कर रहे थे, क्यों हमें वो बार बार बीट कर रहे थे, क्या डिफेंस में कोई गलती थी या कुछ और। तो आई यूज टू आस्क देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैट। समटाइम्स दे गेट बोर कि why you are asking that, but yeah, for me it is important कि बाहर से क्या दिख रहा है। So I think हारने से हम ज्यादा सीखते हैं as compared to win the game.
Absolutely wonderful. I mean, Yeah, and that's something that pushes harder, like as before, वो हमें